এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ FM মহাবাহু আৰু প্ৰাগজ্যোতিপুৰ। এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ কৰোনা সজাগতা অনুষ্ঠান প্ৰতিৰোধ। অংশগ্ৰহণ কৰিছে মানস প্ৰতিম শৰ্মা আৰু পম্পী দেৱীয়ে। এয়া মই মাইক্ৰফোনটো মানস প্ৰতিম শৰ্মালৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। নমস্কাৰ, সমশ্ৰোতাকৈ নমস্কাৰ জনাই আমাৰ প্ৰতিৰোধ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আমাৰ সৈতে কাৰিকৰী সহযোগিতা আগবঢ়াইছে অপূৰ্ব মালিয়ে বৰবৰদৰে। পম্পী, আজি প্ৰথমে আমি কি তথ্য আগবঢ়াম? প্ৰথমে তথ্য আগবঢ়োৱাৰ আগতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো আমি লকডাউন আৰম্ভ হোৱাৰ পৰাই এই অনুষ্ঠানটো আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু আজি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ 50 সংখ্যক খণ্ড আৰু জনসাধাৰণৰ পৰা শ্ৰোতাসকলৰ পৰা আমি যথেষ্ট সঁহাৰি লাভ কৰিছোঁ। তাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ শ্ৰোতাসকলক আৰু আমাক এনেকৈ সঁহাৰি জনাই থাকিব, আমাৰ অনুষ্ঠান শুনি থাকিব, আপোনালোকৰ পৰা আমি সেয়াই আশা কৰিছোঁ। হয়, আমি অসম শ্ৰোতালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই সময়ছোৱাত আমালৈ আগবঢ়োৱা উৎসাহৰ বাবে। প্ৰথমে আজি আমি ভাৰতবৰ্ষৰ তথ্যৰে যদি আৰম্ভ কৰোঁ। হয়, ভাৰতবৰ্ষৰ তথ্য যোৱা 24 ঘণ্টাত ভাৰতত 3525 জন লোক কৰোনা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হৈছে আৰু ইয়াকে লৈ মুঠ সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা ৭৪,281 জন হৈছেগৈ আৰু ইয়াৰে ৪৭,480 জনৰ বৰ্তমান চিকিৎসাধীন আৰু এতিয়ালৈকে মৃত্যু হৈছে 2,415 জন লোকৰ আৰু সুস্থ হৈ উঠিছে 24,386 জন লোক। এইখিনিতে এটা ভাল খবৰো আছে যে সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ হাৰ 32.82% বৃদ্ধি পাইছে। কালি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশবাসীক সম্বোধন কৰি আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত এই কথা কৈছে, এই প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্তি হিচাপে ইয়াৰ সৈতে 20 লাখ কোটি টকাৰ অৰ্থনৈতিক পেকেজ দেশবাসীৰ বাবে ঘোষণা কৰিছে আৰু তেখেতে কৈছিলে যে এই সন্দৰ্ভত বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা বিতংভাৱে তথ্য জনোৱা হ'ব। আজি বিয়লি 4 বজাত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীৰ এই সন্দৰ্ভত এখন সংবাদমেল আছে। আমি এই সংবাদমেলত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যি 20 লাখ কোটি টকাৰ পেকেজৰ কথা ঘোষণা কৰিছিলে এই বিষয়ে আমি বিতং তথ্য নিশ্চয়কৈ লাভ কৰিম। হয়, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কালি আমাক প্ৰধানকৈ কি তথ্য আগবঢ়াইছিলে, কি বিষয়ে প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিছিলে, পম্পী এই সন্দৰ্ভত যদি আপুনি শ্ৰোতাসকলক প্ৰথমে চমুকৈ জনায়। হয়, আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে বিশেষ অৰ্থনৈতিক পেকেজৰ কথাটো 20 লাখ কোটি টকাৰ আৰু এই পেকেজৰ দ্বাৰা তেওঁ কৈছে যে কৃষক, শ্ৰমিক আৰু যিসকল সৎ কৰদাতা, যিসকলে কৰ সদায় চৰকাৰৰ ওচৰত কৰ দি আহিছে বা মজলীয়া ক্ষুদ্ৰ আৰু অতি ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগসমূহৰ লগতে কুটিৰ উদ্যোগসমূহ উপকৃত হ'ব, যিসমূহ কুটিৰ উদ্যোগ আছে। আৰু এই যি 20 লাখ কোটি টকা আগবঢ়াইছে এয়া ভাৰতৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ 10% হ'ব। হয়, এটা বৃহৎ পুঁজি আগবঢ়াইছে আৰু বৰ্তমান সময়ত ভূমি আৰু শ্ৰমিক আৰু আইনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিব বুলি কৈছে আৰু কালি এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁ কথা কৈছে যে স্থানীয় সামগ্ৰী ব্যৱহাৰৰ কথাটো কৈছে। এই কথাষাৰ পূৰ্বেও আমাৰ অনুষ্ঠানত এগৰাকী ছাত্ৰ কেন্দ্ৰতে আৰু অইন ব্যক্তিয়ে কৈছিলে যে আমি থলুৱা সামগ্ৰী, থলুৱা উৎপাদিত সামগ্ৰী আমি গুৰুত্ব দিব লাগে, যি বিষয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পূৰ্বে মেক ইন ইণ্ডিয়া এই বিষয়ে কৈ আছিলে। হয়, পম্পী, আমি এতিয়া নতুন দিল্লীত সংযুক্ত হৈছোঁ ভাৰত চৰকাৰৰ মাননীয় ডনাৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াৰ সৈতে। আমি এতিয়া ডক্টৰ সিং ডাঙৰীয়াৰ সৈতে কিছু কথা পাতিম। सर, आपका प्रतिरोध कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद मानस जी, धन्यवाद जी। सर, पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो सर इस संकट की घड़ी में पूर्वोत्तर के राज्यों को मदद करने के लिए या वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या कोई विशेष योजना या रणनीति तैयार की गई है आपकी तरफ से? हाँ मानस जी, उससे पहले मैं आपके माध्यम से और प्रतिरोध का ये कार्यक्रम सुनने वाले श्रोताओं को बधाई देता हूँ कि पूर्वोत्तर और नॉर्थ ईस्ट का परफॉर्मेंस कोरोना मैनेजमेंट में देश के बाकी अन्य कई क्षेत्रों की तुलना में बहुत अच्छा रहा है। एंड आई वुड से दैट नॉर्थ ईस्ट हैज इमर्ज्ड एज मॉडल ऑफ कोरोना मैनेजमेंट, जैसा हमने 2 दिन पहले लिखा भी कि जैसे मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बनकर के उभरा था 6 साल में, अब मॉडल ऑफ कोरोना मैनेजमेंट। आज भी अगर आप देखें तो 6-8 प्रदेश हैं हमारे, जिनमें से 5 ऐसे हैं कि जहां पर बिल्कुल कोरोना फ्री हैं, केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा में बचे हैं और कुल मिलाकर के हमारे कोई 233 केस कल शाम तक रहे। तो जिस तरह के 8 प्रदेश हैं, और इसके लिए मैं अभिनंदन करूंगा और प्रशंसा करूंगा हमारे पूर्वोत्तर के जितने भाई बहन हैं, बहुत ही अनुशासित हैं, बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं। लॉकडाउन का उन्होंने शुरू में ही पालन किया और जिस तरह से गोले बना करके खड़े होने का एक प्रोसेस, एक परंपरा
आपने देखी होगी मार्केट में, जी सर, वो नॉर्थ ईस्ट से ही शुरू में प्रारंभ हुई और फिर देश के दूसरे हिस्सों में भी उसको फॉलो किया गया। अब जहां तक आपने कहा सहायता का, वैसे तो केंद्र की ओर से बहुत जेनरस तरीके से सहायता की जा रही है। प्रधानमंत्री जी का शुरू में ही निर्देश था, मोदी जी का, कि जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र हैं, पेरिफेरल एरिया, नॉर्थ ईस्ट है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, आइलैंड टेरिटरीज है, वहां पर एयर कार्गो के पहले से ही एसेंशियल सप्लाईज उपलब्ध करवा दी जाएं, क्योंकि ऐसी हमारी टोपोग्राफी है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस है कि कल को लोगों को किसी किस्म की दिक्कत आएगी, अभाव होगा, डेफिशिएंसी होगी, शॉर्टेज होगी, तो उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी कम होगा। और इसलिए 30 को ही सबसे पहला एयर कार्गो फ्लाइट रात को कोई 10-11 बजे के बाद गुवाहाटी पहुंचा एयर इंडिया के द्वारा। अगले दिन नागालैंड में इंडियन एयरफोर्स का पहुंचा और फिर लगभग रोज हमारी कार्गो फ्लाइट चलती रही। आज तक कुल मिलाकर के 350 से 400 टन केवल एयर कार्गो वहां पहुंचा है। उसके अतिरिक्त फिर ट्रेन के माध्यम से पार्सल एक्सप्रेस भी गुवाहाटी तक चली है। और जहां तक डोनर मिनिस्ट्री का संबंध है, लॉकडाउन से बहुत पहले, जबकि अभी बाकी प्रदेशों ने शायद इतनी ज्यादा चिंता नहीं की थी, के प्रदेशों के लिए डोनर मंत्रालय ने ये फैसला किया कि हम आने वाले सप्ताहों में अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा समय कोरोना की तरफ लगा देंगे, क्योंकि इस समय वो हमारी प्राथमिकता रहेगी, प्रायोरिटी रहेगी। और उसके चलते 25 करोड़ रुपया तुरंत नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स के लिए अवेलेबल कर दिया गया था एज गैप फंडिंग टू अरेंज फॉर दी कोरोना मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन, क्योंकि उसमें पीपीई किट्स की जरूरत थी, मास्क की जरूरत थी, नया ये चैलेंज आया था। और असम को उसी समय 5 करोड़ रुपया दे दिया गया। उसके बाद हमारे यहाँ एक नॉर्थ ईस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम है, नेसिड, जिसके अंतर्गत लगभग 500 करोड़ से अधिक राशि रहती है हेल्थ सेक्टर के लिए। तो पूर्वोत्तर की सभी प्रदेशों को यह कहा गया कि अगर वो कोरोना रिलेटेड कोई प्रपोजल भेजते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे, उसको जल्दी एक्सपेडाइट करेंगे। और मुझे ये कहते हुए खुशी है आपके माध्यम से कि बहुत से प्रदेशों ने तुरंत उसमें रिस्पॉन्ड किया है। मणिपुर ने अपने लिए एक इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल का प्रपोजल भेजा है कि आने वाले समय में अगर इस प्रकार की फिर से आपदा आती है तो पहले से उनकी प्रिपेयर्डनेस रहे। इसी तरह मिजोरम ने भी, मेघालय ने भी और दूसरे प्रदेश भी भेज रहे हैं और उसमें डोनर मंत्रालय पूरी तरह सक्रिय है। इसके अतिरिक्त जहां तक बाकी मंत्रालयों का संबंध है, जैसे मैंने कहा, चाहे एविएशन है, चाहे होम है, नॉर्थ ईस्ट को विशेष प्राथमिकता दी गई। और इतना ही नहीं, जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे बाहर हमारे पढ़ रहे हैं उनका भी डोनर मंत्रालय ने एज कोऑर्डिनेटर बन करके ध्यान रखा। आपको याद होगा, अभी पिछले ही संडे की बात है कि कुछ एक बच्चियां थी नॉर्थ ईस्ट की, जी सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिनको हॉस्टल वेकेट करने को किसी मिस कम्युनिकेशन के कारण नोटिस दिया गया, तो रातों रात ही इंटरवीन करके डोनर मंत्रालय की ओर से उसका समाधान हुआ, वो रिजॉल्व हुआ। वाइस चांसलर ने स्वयं जाकर के उनको रीअश्योर किया और एक प्रेस रिलीज दिया कि ये जहां तक चाहें यहाँ रह सकते हैं कंफर्टेबली एंड सेफली। इसी तरह बहुत से स्टूडेंट्स हमारे जो कोटा में थे, राजस्थान में, वो वापस लौटे हैं, वो असम में भी पहुंचे हैं और कुछ लोग मेघालय भी आ गए, क्योंकि पहले मेघालय में थोड़ा सा परमिशन में थोड़ा विलंब हुआ था। तो कहने का मतलब ये कि नॉर्थ ईस्ट के भीतर जो लोग रह रहे हैं उनकी भी चिंता की गई, जो बाहर हैं उनकी भी चिंता की गई। लॉकडाउन के कारण किसी चीज का अभाव, शॉर्टेज ना हो, ये भी चिंता की गई। और सारे मंत्रालयों का जब मैं उल्लेख करता हूं तो फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी हमारे साथ सहयोग किया। अर्ली बॉर्डर सीलिंग, जैसे कि आप जानते हैं हमारा बहुत लंबा बॉर्डर है नॉर्थ ईस्ट का, उसके साथ बांग्लादेश लगता है, म्यांमार लगता है, भूटान लगता है, नेपाल लगता है। उसको लॉकडाउन से पहले ही पूरी तरह इफेक्टिवली एंड फुली सील कर दिया गया और उसका ये आज परिणाम है कि उदाहरण के तौर पर सिक्किम जैसा हमारा प्रदेश थ्रू आउट कोरोना फ्री, एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आया। बाकी हमारे प्रदेशों में लगभग 5 पहले से थे फ्री, फिर बीच में त्रिपुरा में कुछ एक केस आए जिसके कारण वहां थोड़ी सी देरी हुई है, पर मुझे लगता है आने वाले टाइम में पूरी तरह नॉर्थ ईस्ट कोरोना फ्री हो जाएगा। जी सर, आपने जो सराहना की, पूरा प्रदेशवासी, पूरा पूर्वोत्तर इससे उत्साहित होंगे डेफिनेटली। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जो अभी डोनर मिनिस्ट्री की जो अभी ऑनगोइंग स्कीम्स है, परियोजना है,
उसकी क्या स्थिति होगी सर, और इस पे क्या कोविड-19 का इस पे कितना असर हो सकता है? नहीं, देखिए, ये तो हम सबको मानना पड़ेगा कि सारे देश भर की तरह जैसे कुछ कामों में रुकावट आई, हमारे विकास कार्यों में रुकावट आई, उसका प्रभाव उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर में भी पड़ा है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही संभव हुआ तुरंत एक्टिविटी शुरू कर दी गई। मनरेगा की एक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट में भी शुरू हो गई है। हम रोज सोशल मीडिया पर विजुअल चढ़ा रहे हैं। मणिपुर में, मेघालय में डेवलपमेंट काम भी धीरे धीरे अब शुरू होने लग गए हैं। और इसके अलावा आने वाले समय में हेल्थ रिलेटेड कुछ एक इंफ्रास्ट्रक्चर काम रहेंगे जिनके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। और जो हमारे उदाहरण के तौर पर रेलवे का काम था, अभी मेरी बात हुई है बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ, वहाँ जो हमारी एम्बेसडर है, हमारी जो हाई कमिश्नर है भारत की ढाका में, उनके साथ, और हमारी जो रेल पटरी स्थापित होने जा रही है फ्रॉम अगरतला त्रिपुरा टू बांग्लादेश, फर्स्ट एवर ट्रेन टू बांग्लादेश, हमने ऐसी योजना बनाई थी कि अगले साल वो ट्रेन चालू हो जाए। अब ये 2-3 महीने का विलंब हुआ है, लेकिन आई एम स्टिल होपफुल कि अगले साल हम इस टाइमलाइन को कंप्लीट कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य इस तरह से हमारे सड़कों के काम थे, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि बावजूद इस विलंब के, कंस्ट्रेंट के, दुश्वारी के, हमारा ये प्रयास है कि हम टाइमलाइन को बहुत ज्यादा डिले ना होने दें। जी, और सर जो या प्रवासी कामगार है या विद्यार्थी है जो दक्षिण भारत से हो या पश्चिम भारत से हो, असम वापस आ रहे हैं, पूर्वोत्तर वापस आ रहे हैं, उन लोग की मदद के लिए सर आप क्या सोच रहे हैं, कैसे इन लोग को मदद किया जाएगा? एक तो उनके लिए हमने, वैसे तो अब रेलगाड़ियां तो शुरू हो गई हैं, गुवाहाटी भी जाना शुरू हो गए हैं। उसके अलावा जैसे मैंने कहा, आज बहुत से स्टूडेंट्स भी आए हैं, राजस्थान से स्टूडेंट्स आए हैं, दूसरे अलग प्रदेशों से भी आ रहे हैं। कुछ एक ट्रेन प्रदेशों ने अपने स्तर पर की हैं। जैसे कल ही मुझे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने एक ट्रेन अरेंज की है साउथ इंडिया से, जो पूरी की पूरी ट्रेन त्रिपुरा के विद्यार्थियों को और वहाँ के कामगारों को लेकर के आएगी। हमने ये भी कहा है, जैसे कि हमें अरुणाचल के अधिकारियों ने, अरुणाचल की प्रदेश की सरकार ने कहा, या मेघालय के मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिन प्रदेशों में से बाहर लोग कम हैं और जो पूरी एक रेलगाड़ी बुक कराने की जिनको आवश्यकता नहीं है, तो वहाँ हम पूलिंग कर ले 3-4 प्रदेशों के लोगों की, जो मान लीजिए बंगलौर में रहते हैं या पूना में रहते हैं, तो एक रेलगाड़ी के माध्यम से सबको इकट्ठा ले आने का एक ही व्यवस्था हो और उसका कोऑर्डिनेशन डोनर मंत्रालय करे। जी, लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले 5-7 दिन में ये मूवमेंट का काम पूरी तरह से मुकम्मल हो जाएगा। जी, और सर ये लोग जो वापस आएंगे पूर्वोत्तर में, सर आपका क्या प्लान है कि इन लोग को यहीं पे एंगेज किया जाए काम में? तो इसके लिए सर आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, जहाँ जहाँ तो काम लगे हैं हमारे, वहाँ तो ये लोग काम में लग गए हैं। इनफैक्ट मुझे कह करके बड़ी खुशी है कि हमारे चाय बागानों का काम पहले से ही जारी है। लॉकडाउन के शुरू में थोड़ा सा चाय बागान का काम रुका था, लेकिन उसको चालू कर दिया गया। फिर किसी ने वहां पर एक गलतफहमी, भ्रम फैलाया कि चाय बागान जाने से कोरोना होगा। और मैं प्रशंसा करता हूं असम राज्य की सरकार की, वहां के मुख्यमंत्री कार्यालय की। उन्होंने इंटरवीन किया, लोगों को समझाया और धीरे धीरे काम शुरू हो गया। तो मैं तो ये कहूंगा कि पूर्वोत्तर में थोड़ी बहुत एक्टिविटी लॉकडाउन के दौरान भी जारी रही। अब दूसरी, जब रिलैक्स की है, होम मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस में थोड़ी सी रिलैक्सेशन लाई थी बीच में 14 अप्रैल के बाद, तो उसमें कुछ एक्टिविटी जो परमिट की, उसमें एक एक्टिविटी थी रेगुलेटेड एक्टिविटी रिगार्डिंग बैम्बू। तो वो हमारी लॉकडाउन के दौरान ही शुरू हो गई है, क्योंकि बैम्बू इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन दी पोस्ट कोविड इरा। क्योंकि अभी बैम्बू के बारे में लोगों को जानकारी भी आई है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में अमेंडमेंट भी हुआ है। इसी तरह से हमारे, जैसे मैंने कहा, चाय बागान का काम तो जारी था, फार्मिंग का काम शुरू हो गया है। फार्मिंग का काम जो रुक गया था, अब जब होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन से उसको परमिशन दिया गया, तो पूर्वोत्तर में, तो कहने का मतलब फार्मिंग शुरू हो गया, फिशरी शुरू हो गई, मनरेगा शुरू हो गया, चाय बागान शुरू हो गया, बैम्बू की एक्टिविटी शुरू हो गई। तो मैं तो ये कहूंगा कि देश के दूसरे बहुत से हिस्सों की तुलना में नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की लाइवलीहुड एक्टिविटी पहले शुरू, और जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो पहले से ही बहुत सक्रिय हैं, विशेषकर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप तरह तरह की चीजें बनाते हैं, गारमेंट्स इत्यादि, और उसकी मार्केट दिल्ली में भी है। इस दौरान उन्होंने एक नया रास्ता अपनाया और बड़ी सूझबूझ के साथ
फेस कवर्स, फेस मास्क बनाने का, और इतने फैंसी फेस मास्क और इतने खूबसूरत सुंदर देखने में कि हर पोशाक के साथ अलग रंग का फेस मास्क हो, हमारे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना रहे हैं। तो वो भी एक तरह की बिजनेस और लाइवलीहुड जनरेटिंग एक्टिविटी भी है, एट द सेम टाइम कोरोना की खिदमत भी है, कोरोना मैनेजमेंट में एक सहयोग भी है। जी सर। और सर इस दौरान देखा गया है कि किसानों को थोड़ा सा नुकसान हुआ है, इसके कारण शायद ये भी है कि यहाँ पे थोड़ा कोल्ड स्टोरेज की कमी है, तो इस पे आप आने वाले दिनों में कैसे जोर देंगे? कोल्ड स्टोरेज को लेकर के वैसे तो कोरोना से पहले ही बात दिक्कत रहती है, क्योंकि शायद हमें कभी ये ध्यान में नहीं आता, अनुमान नहीं आता कि लगभग 40% हमारा ऐसा फल है जो सड़कों पर पड़ा रहता है और पूरी तरह इस्तेमाल नहीं होता। फ्रेश फ्रूट है हाईएस्ट ऑर्डर, लेकिन वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पर स्टोरेज की फैसिलिटी कम है, ट्रांसपोर्टेशन की है। तो हम तो इस पर पहले से ही विचार कर रहे थे कि किस तरह से हो। एक बार हमने ये भी सुझाव रखा था कि रेलवे वेयर हाउस हो, कि सीधा उसको रेलवे डिब्बे में पहुंचा दिया जाए और डिब्बा ऐसा वेयर हाउस टाइप हो कि वहां से सीधा ही वो दिल्ली आ जाए या देश के दूसरे हिस्सों में आ जाए। लेकिन उस पर हमारा काम जारी है, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म मेजर है, नॉट नेसेसरली रिलेटेड टू कोरोना, इवन अदरवाइज। लेकिन ये कोरोना की वजह से उसमें भी थोड़ा सा विलंब आया है। और सर, क्या आपको इस सिचुएशन के बाद ये लगता है कि हमें पूर्वोत्तर के प्रदेशों को यहाँ पे हेल्थ सेक्टर पे या हेल्थ केयर पे थोड़ा सा और ज्यादा जोर देने की जरूरत है? निश्चय ही, इसीलिए हमने डोनर मंत्रालय की ओर से भी आग्रह किया सभी राज्यों को कि जो डोनर मंत्रालय में हेल्थ सेक्टर रिलेटेड बजट है उसको हम आपको प्रोत्साहित करेंगे, उसको एक्सपीडाइट भी करेंगे यदि आप उसको कोविड रिलेटेड या इन्फेक्शियस डिजीजेस मैनेजमेंट रिलेटेड प्रपोजल्स में लगाएंगे। जी। और सर पूर्वोत्तर के लोगों के लिए आपका क्या संदेश होगा आखिर में? और साथ में मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि सर लोग वापस आ रहे हैं, अगर वो लोग डोनर मंत्रालय से जोड़ना से कामकाज के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उन लोग के लिए आपका क्या संदेश होगा? निश्चय, जो लोग वापस आ रहे हैं उनके लिए वहां पर भी एक्टिविटी के साधन रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है ऐसा समय आए कि वो खुद ही वापस जाना भी चाहे, वो अलग बात है। और जहां तक संदेश का संबंध है, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, डोनर के मंत्री होने के नाते सभी अपने पूर्वोत्तर के भाइयों बहनों को आश्वस्त करूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 में सरकार बनते ही ये कहा था कि पूर्वोत्तर को हम देश के दूसरे हिस्सों के बराबर ला करके खड़ा करेंगे, उतनी ही उसको तवज्जो, प्रायोरिटी मिलेगी, अटेंशन मिलेगी जैसे बाकी प्रदेशों को मिलती है, जो शायद पहले 60-65 साल नहीं मिली थी। और उसी का कारण है कि 6 साल में एक क्रांतिकारी परिवर्तन, रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन वहां हुआ है। और इन 2 महीने में, 3 महीने में भी ये प्रमाणित हुआ, ये साबित हुआ कि उसी तरह की प्रायोरिटी मोदी सरकार पूर्वोत्तर को देती है, इवन इन दी मैटर ऑफ कोरोना मैनेजमेंट। और यही कारण है कि नॉर्थ ईस्ट हैज इमर्ज्ड एज अ मॉडल फॉर अदर्स टू फॉलो एज फार एज कोरोना मैनेजमेंट इज कंसर्न। और इसके लिए बधाई के पात्र हैं वहां के लोग, जिस तरह से उन्होंने सहयोग किया और जिस तरह से उनको प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास है कि अगर मोदी जी ने कुछ कहा है तो उनका कहीं ना कहीं इसमें हित है। और इसलिए आने वाले समय में भी मुझे विश्वास है कि नॉर्थ ईस्ट इज गोइंग टू बी the destination for all the young startups, entrepreneurs and business seeking people from all over India. नॉर्थ ईस्ट का भविष्य बहुत उज्जवल है और आने वाले समय में वो पुनः खड़ा करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल यदि किसी रीजन का होगा तो नॉर्थ ईस्ट का होगा। जी। डॉक्टर सिंह, आपने हमें समय दिया, हम लोग के साथ बहुत सारे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट साझा किया, इसके लिए आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मानस जी, आपके माध्यम से श्रोताओं के साथ बात करने का अवसर मिला, आपने हमें ये मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। আমি ডক্টৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়ালৈ পুনৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। তেখেতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক লৈ আৰু তেখেতৰ ডোনাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ বিষয় লৈ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আমাৰ শ্ৰোতাসকলক জনালে। হয়, তেখেতে কৈছে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে যিদৰে কৰোনা প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, কৰোনা ভাইৰাছ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, সমগ্ৰ দেশৰ বাবে আদৰ্শ বুলি কৈছে, হয়, মডেল বুলি কৈছে। আৰু তেওঁ খুব সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে যে এতিয়ালৈকে ছিকিমত আৰু 3খন অসম, মেঘালয় আৰু ত্ৰিপুৰাক বাদ দি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 5খন ৰাজ্যই প্ৰায় কৰোনা মুক্ত বুলি এই পৰ্যায়ত নতুনকৈ কোনো তাত পজিটিভ ৰোগী পোৱা যোৱা নাই। হয়, আমাৰ ওচৰত কেইবাটাও যি অডিঅ' বাৰ্তা আহিছে, মানে যিহেতু আপুনি প্ৰথমে ক'লে আমাৰ 50 সংখ্যক খণ্ড হিচাপে, আমি তাৰে প্ৰথম এটা অডিঅ' বাৰ্তাটো বজাবলৈ মই অপূৰ্বক অনুৰোধ জনালোঁ।
এই প্ৰতিৰোধ অনুষ্ঠান যিটো আপোনালোকে আকাশবাণী কেন্দ্ৰ গুৱাহাটীৰ পৰা কৰিছে এইটো অতি সুন্দৰ আৰু ৰাইজৰ মাজত ইয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰিছে COVID-19 সম্পৰ্কে। আৰু এই প্ৰতিৰোধ অনুষ্ঠানৰ যোগেদি গাঁৱে ভূঞে প্ৰতিজন নাগৰিকে তেওঁলোকে জানিব পাৰিছে বিষয়টো কি, কেনেকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব, কেনেকে মাস্ক পৰিধান কৰিব, কেনেকে হাত ধুই থাকিব, কেনেকে সামাজিক দূৰত্ব আমি বজাই ৰাখিব লাগিব। আৰু ইতিমধ্যে এই অনুষ্ঠানটোৰ যোগেদি ময়ো আপোনাৰ এই অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলো ৰাইজৰ মনোবল বঢ়াবলৈ। আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ায়ো এইটো অনুষ্ঠানত ভাগ লৈ পেলাই মানুহক সজাগ সচেতন কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছিল। এই আপোনালোকৰ যিটো প্ৰচেষ্টা, এই প্ৰচেষ্টাক মই শলাগ লৈছো আৰু মই আশা কৰিছো অদূৰ ভৱিষ্যতে আপোনালোকে এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচীত ব্যস্ত থাকি আৰু ৰাইজৰ মাজত অধিক প্ৰচাৰ আৰু সজাগতামূলক পদক্ষেপ ল'ব। তাৰ বাবে মই আন্তৰিকতাৰে আপোনালোকক শলাগ জনাইছো আৰু আপোনালোকক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু ই এক আমাৰ এই বৰ্তমানৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অতি ইতিবাচক পদক্ষেপ। এয়া আছিল অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মিডিয়া উপদেষ্টা শ্ৰীযুত ঋষিকেশ গোস্বামী। আমাৰ হাতলৈ আন এক বাৰ্তা পঠিয়াইছে আকাশবাণীৰ বাতৰি বিভাগৰ প্ৰিন্সিপাল ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল মেডাম ইৰা যোশীয়ে। আমি মেডাম ইৰা যোশীৰ অডিঅ' বাৰ্তাটো শুনি লওঁ। Today, Pratirodh completes 50th episode, and for this, I must congratulate the regional news unit of Guwahati headed by Sri Manas Pritam. Each one of you have done a wonderful job because you have been able to reach the public at the most difficult times when they needed all the support from All India Radio. You have given it to them. I know you have been calling people from various ministers, chief minister and other departments so that all round problems are taken into account. Once again I would like to congratulate every single person in All India Radio Guwahati. Thank you. আমি মেডাম যোশীলৈ আমাৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনালোঁ। হয়, এতিয়া শেষত আন এক অডিঅ' বাৰ্তা আমালৈ শুভেচ্ছামূলক বাৰ্তা শ্ৰোতাসকলে পঠাইছে আমাৰ জৰিয়তে। এয়া হ'ল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত থকা তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল LR বিশ্বনাথ ছাৰে। আমি ডক্টৰ বিশ্বনাথ ডাঙৰীয়াৰ অডিঅ' বাৰ্তাটো পুনৰ বজাই শুনিবলৈ অপূৰ্বক অনুৰোধ জনালোঁ। आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रतिरोध कार्यक्रम का 50वां एपिसोड को बड़े अच्छी तरह मनाया जा रहा है। यह बहुत खुशी की बात है कि यह कार्यक्रम विभिन्न प्रकारों के मुद्दे पर और बहुत बड़े स्तर पर चर्चा का विषय बना है। प्रतिरोध कार्यक्रम में आम आदमी के बहुत सारे मुद्दों पर बहुत गंभीर और बहुत वरिष्ठ चर्चा होती है। विभिन्न लोग, वरिष्ठ लोग और फेमस पर्सनालिटीज, विशेषज्ञ और जो भी अखबार और समाचार से संबंध रखते हैं, ये लोग भी इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। और इसके माध्यम से आकाशवाणी गुवाहाटी बहुत दूर दूर तक वरिष्ठ मुद्दे पर चर्चा करता है और मूल्य समय लोगों का इसमें देने में सहायता करता है ताकि वो लोग इससे कुछ जानकारी पाएं और अपने आप को तरह तरह के कार्यक्रम के सूचना से लाभान्वित बनाएं। मैं आशा करता हूं कि ये 50वां नहीं, ये 500 धारावाहिक कार्यक्रम तक भी जाएगा और लोगों को बहुत ही ज्यादा लाभ पहुंचाएगा। बधाई। आकाशवाणी। আমি শ্ৰীযুত LR বিশ্বনাথ ছাৰক আমাৰ মাৰ্গদৰ্শক হিচাপে আমাৰ যিদৰে উৎসাহ যোগাই আহিছে অনুষ্ঠানটোত। তাৰোপৰি আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলটো আছে, আমি সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পপি, আৰু নতুন কি তথ্য আহিছে আমাৰ ওচৰলৈ? নতুন তথ্য, শ্ৰমিক স্পেচিয়েল ৰেলগাড়ী এখন ইতিমধ্যে জিৰিবামত উপস্থিত হৈছে, মণিপুৰৰ জিৰিবামত। এইখনত 1140জন যাত্ৰীক লৈ আহিছে, চেন্নাইৰ পৰা আহিছে। চেন্নাইত আবদ্ধ হৈ আছিল মণিপুৰৰ এইসকল লোক। আৰু ইতিমধ্যে 18টা মেডিকেল বুথ স্থাপন কৰা হৈছে। তাত যাত্ৰীসকলক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হ'ব আৰু ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জিলাত কোৱাৰেণ্টাইন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু আগৰতলা অভিমুখে যিখন ৰেলগাড়ী আহি আছে শ্ৰমিক স্পেচিয়েল, সেই ৰেলগাড়ীখন আজি বিয়লিৰ ভাগত আহি পাব বুলি আমাক উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ মুখ্য জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া শুভানন্দ চন্দাই জানিবলৈ দিছে। তাৰোপৰি নতুন দিল্লীৰ পৰা যিখন সাধাৰণ যাত্ৰী কঢ়িয়াই এইখন ৰেলগাড়ী আহি আছে, এইখন
কাইলৈ ডিব্ৰুগড়ত আহি উপস্থিত হ'ব হয় আমাৰ ওচৰলৈ এটি ডুবাইৰ পৰা এগৰাকী শ্ৰোতাই আমালৈ অডিঅ' প্ৰতিবেদন পঠাইছে ৰেডিঅ' ৰিপোৰ্ট আমি সেইটো শুনি লওঁ नमस्ते मेरा नाम सुधाश्री है और इस वक्त मैं दुबई से बोल रही हूँ और यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि जो रिपाट्रिएशन का जो प्रोसेस है जो भारत सरकार ने शुरू किया है वंदे भारत मिशन के ज़रिए जो विश्व के अलग अलग जगह पे भारतीय फंसे हुए हैं उनको अपना देश लाने का जो प्रोसेस है जो रिपाट्रिएशन का प्रोसेस है वो चालू है उसके बारे में आप सबको पता ही होगा और उसके तहत यूएई में भी जो भारतीय फंसे हुए थे चाहे वो किसी श्रमिक हो जिनको बहुत दिनों से पैसे नहीं मिल रहे हैं या फिर जो बुजुर्ग कुछ महीने पहले यहाँ पे आए हुए थे सगे संबंधियों के घर जो लोग आए हुए थे या फिर जो प्रेगनेंसी केसेस थे जो कि इंडिया जाने वाले थे डिलीवरी के लिए पहले फेज में उनको प्रायोरिटीज दिया गया है एंड ये सब जो रिपैट्रिएशन का प्रोसेस है ये 7 मई से शुरू हुआ एंड जो फर्स्ट फेज है वो 13 को ख़त्म होगा लेकिन जो दूसरा वाला फेज है जो कि 17 मई से शुरू होगा उसमें 11 नए फ्लाइट्स हैं दैट विल इंक्लूड फ्यू ऑफ द ईस्टर्न स्टेट्स जहाँ पे कि भुवनेश्वर है और दूसरे शहर हैं और कुछ दक्षिण भारतीय शहर भी हैं वहाँ पे यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जो दुबई से जो भुवनेश्वर का फ़्लाइट है वो पहला फ़्लाइट अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट है उससे पहले दुबई टू भुवनेश्वर के लिए कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं था तो यहाँ पे हम सब शुक्रगुजार हैं भारतीय जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी के सरकार को हम शुक्रिया कहना चाहेंगे कि उनके वजह से यहाँ पे जो भारतीय फंसे हुए थे वो अब आराम से जा सकते हैं अपने घर और जाने से पहले इनको सारी जो मेडिकल चेकअप्स वगैरह है चाहे आप वो थर्मल स्क्रीनिंग ले लो या फिर जो स्वाब टेस्ट है वो सारा करके यहाँ का जो दुबई का जो गवर्नमेंट है आप कह लो कि यूएई का जो गवर्नमेंट है वो सब करके यहाँ से लोगों को छोड़ा जा रहा है ताकि जब वहाँ पे वो लोग पहुँचे तो इतनी सारी असुविधा ना हो সুজাশ্ৰীয়ে আমাক ডুবাইৰ পৰা তাৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আৰু ভাৰত চৰকাৰে বন্দে ভাৰত অভিযান এই বিষয়ে আমি কথা পাতি আছোঁ এই সন্দৰ্ভত আমাক মিটিংৰূপে জনালে আমি লগতে জনাব বিচাৰিছোঁ কালি আমি অনুষ্ঠানত কথা পাতিছিলোঁ মুম্বাইৰ পৰা ৰোগী আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়াল যিসকল ব্যক্তিক লৈ গাড়ীকেইখন যাত্ৰা কৰিছিলে যোৱা নিশা গুৱাহাটীত সৰুজাত তেওঁলোক আহিবলৈ উপস্থিত হৈছেহি আৰু বন্দে ভাৰত অভিযানৰ কথা তেওঁ কৈছিল আজিৰ তথ্যখিনি দিব বিচাৰিছো আজি 8খন বিমানেৰে কুৱেইট ডুবাই লণ্ডন চিকাগো ঢাকা আৰু ছিংগাপুৰৰ পৰা আবদ্ধ ভাৰতীয় লোকসকলক অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰে ইতিমধ্যে ঢাকাৰ পৰা 169 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ এখন বিমান ৰাওনা হৈছে শ্ৰীনগৰ অভিমুখে হয় আমাৰ সময় আজি প্ৰায় শেষ হৈ আহিলে আমি পুনৰ শ্ৰোতাসকলক জনাবলৈ বিচাৰিছো আজি বিয়লি 4 বজাত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে এখন সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছে আৰু এই সংবাদমেলত আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কালি ঘোষণা কৰা অনুসৰি 20 লাখ কোটি টকাৰ যি পেকেজৰ কথা কৈছিলে উন্নয়ন দেশৰ উন্নয়নৰ বাবে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত এই বিষয়ে আমি বিতং তথ্য নিশ্চয়কৈ লাভ কৰিম আমাৰ এতিয়া সময় শেষ কাইলৈ আমি পুনৰ এই সময়তে প্ৰতিৰোধ অনুষ্ঠানলৈ উপস্থিত হ'ম গতিকে তেতিয়ালৈকে ঘৰতে থাকক সুৰক্ষিত থাকক শুদ্ধ আৰু শেহতীয়া তথ্যৰ বাবে আকাশবাণী শুনি থাকক নমস্কাৰ প্ৰতিৰোধ অনুষ্ঠানটিৰ আজিলৈ ইমানতে অন্ত পৰিল আধ ধৰিলে মানৱ প্ৰতিম শৰ্মা পম্পী দেৱীয়ে সহযোগ কৰিলে অপূৰ্ব মাইদীয়ে